In this module, we will review some of the additional frequently asked questions about ERP system. You are executive and you are given a responsibility to implement ERP. तो वो कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जेक्टिव्स के जहन में आने चाहिए? One question could be कि what return can company expect from its ERP investment? कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कंपनी को उसका क्या फायदा है, या कंपनी इन रिटर्न टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट, ERP एलिमिनेट्स रिडंडेंट एफर्ट्स. तो जो काम बार बार हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं है, वो काम एलिमिनेट करता है ERP, जिसका मतलब ये हुआ कि टाइम सेव हो गया. एंड इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेटेड डेटा. डुप्लीकेटेड डेटा जो जनरेट हो रहा है बार बार कंपनी के अंदर क्योंकि सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही. ERP सिस्टम आल्सो एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड इट कैन जनरेट सेविंग, क्योंकि जब टाइम कम लग रहा है और एक काम जितना टाइम उसको चाहिए वही काम उतना टाइम ही ले रहा है, तो सेविंग्स बढ़ जाएंगी. एंड ऑपरेशनली कंपनीज बेहतर तरीके से वो टास्क परफॉर्म कर पाएंगी. ERP systems can help produce goods and services more quickly when the information is shared. और हर कंपनी के एम्प्लॉय को पता है कि एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, तो इट वुड हेल्प टू मेक बेटर डिसीजंस, ताकि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो वो बना रहे हैं उसकी स्केजुलिंग, उसकी प्लानिंग, उसकी प्रोडक्शन आसान और तेज हो जाए. Companies that does not implement ERP system might be forced out of business by competitors that have an ERP system. So there might be a possibilities because due to advancement of technology, there might be a company who enters into the market and offers same kind of product and services which your company is offering. But because they are using ERP systems, so customer would be more happier with that company. So there might be a possibility कि you will be out of the competition, out of the market. तो जरूरत इस बात की है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ताकि कस्टमर्स को बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर की जाए. Smoothly running ERP system can save a company's personnel, supplier, distributor, and customer much frustration. Frustration mean कि if the information is not shared, किसी को पता ही नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, तो employee to customer to supplier to distributor किसी को up to date और as of now information नहीं है, तो level of frustration will go up, irritation will be there will be gaps in the communication. When there will be gaps in the communication, तो बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी. तो ERP softwares, if you bring in your company, so it help reduce the level of frustration among all the stakeholders in the organization. Another question could be, how long does it take to see a return on an ERP investment? कितना टाइम चाहिए when we actually see the benefits of ERP system? ERP systems ROI can be difficult to calculate. Depending on the size, depending on how much you have invested, depending on किस काम के लिए आपने ERP system introduce किया है, actual calculation is difficult. But it is the role and responsibility of the executives कि वो management को on board लें और measurable outcome, measurable figures के अंदर मैनेजमेंट को बताएं इस बात के कि आफ्टर 2 years और 3 years हमें बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिल सकता है. मोस्ट कंपनीज फेल्ट दैट नॉन फाइनेंशियल गोल्स वेयर द रीजंस बिहाइंड देयर ERP इंस्टॉलेशन. तो देयर माइट बी फाइनेंशियल गोल्स कि हम कितना सेव कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर माइट बी नॉन फाइनेंशियल गोल्स विच कुड बी नॉन टेंजिबल, कि वो हम क्या अचीव कर रहे हैं. अगर टाइम कम लग रहा है, दैट इज अगेन ए बेनिफिट. अगर फ्रस्ट्रेशन यूजर की कम हो रही है, दैट इज अगेन ए बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन.
Pearstone Research have conducted a study जहां पे 63% of the companies that performed the calculation reported a positive ROI for ERP. तो एक स्टडी जिसमें 63% of the companies have seen positive ROI either after 2 years or 3 years in terms of actual measurable outcomes, financial or non-financial. Another question could be, why do some companies have more success with ERP and than others? So low ROI are caused by people problems. तो कम ROI का एक फैक्टर people की प्रॉब्लम से रिलेट हो सकता है. एंड मिसगाइडेड एक्सपेक्टेशन के स्टार्ट के अंदर आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि ERP सिस्टम कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. याद रहे इस बात की कि सिस्टम इज देयर टू फैसिलिटेट योर वर्क. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स यू हैव. यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिस्टम के स्लेव ना हो जाएं, बट सिस्टम वो टास्क और उस तरीके से ऑटोमेट करे चीजें जो आप काम बेहतर तरीके से कर सकें. नॉट कंप्यूटर मॉल फंक्शंस. तो ये सारी फैक्टर्स कुड बी एडेड एंड कैन गिव आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. Executives hope that new software will cure fundamental business problems that are not curable by any software. तो जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि एक सॉल्यूशन सारे प्रॉब्लम्स के लिए नहीं हो सकता. तो अगर ERP सॉफ्टवेयर आप नहीं यूज कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन ये बन गई कि आफ्टर यूजिंग द सिस्टम सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जिस काम के लिए आप उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंपनी में, वो एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट्स थी. एग्जीक्यूटिव्स एंड IT मैनेजर्स नॉट टेकिंग इनफ टाइम फॉर प्रॉपर एनालिसिस ड्यूरिंग प्लानिंग फेज. तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट नॉट बी स्पेंडिंग इनफ टाइम फॉर प्लानिंग एंड एनालिसिस, जिसकी वजह से एक्चुअल बेनिफिट ना देखने में आए. Executives and IT managers skimping on employees' education and training. So there is, in some companies, there is a trend कि हमें यूजर्स को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी वो सिस्टम यूज कर रहे हैं. Why do we need to train them? Training means cost and time. So अगर आप ऐसे करेंगे तो there might be a possibility कि यूजर सिस्टम तो यूज करना शुरू कर दे बाय फोर्स, लेकिन उस सिस्टम को बेहतर तरीके से ना यूज कर पाए, जिसका रिजल्ट ये होगा कंपनी जिस काम के लिए उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है वो काम बेहतर तरीके से ना हो कंपनी के अंदर.